वो कह रहे हैं पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे। पिछले कुछ समय में 1.5 साल 2 साल के करीब अगर देखें विराट का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है, बहुत कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। अब लग रहा है कि पूरी टीम उनके इर्द गिर्द कहीं रिवॉल्व कर रही है। क्या ज्यादा प्रेशर पड़ता है इससे, या ज्यादा यही मौका होता है जब मेन आर सेपरेटेड फ्रॉम बॉयज? Yes, that's the time when men are separated from boys, और वो समय विराट कोहली का निकल चुका। आई थिंक बहुत क्लोज आ गए थे, ड्रॉप भी हुए थे टीम से, भारतीय टीम से, जब गैरी कर्स्टन कोच थे। और वो बहुत अहम समय था जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन युवराज सिंह टीम से बाहर हुए थे। कहीं ना कहीं क्रिकेट को एक इतनी सीरियसनेस से नहीं ले रहे थे। और जब आप भारतीय टीम के लिए खेलते हैं या आप कंट्री का नेतृत्व करते हैं तो आपको ऑल सीरियसनेस होना चाहिए, बिकॉज और जिस खिलाड़ी के पास इमेंस टैलेंट है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है उस समय के बाद विराट कोहली ने कभी मोड़ के नहीं देखा। जिस तरीके का प्रदर्शन करते आ रहे हैं 24 महीनों से, उन्होंने जगह अपनी खुद बनाई है इस भारतीय लाइनअप के अंदर। और कोई भी ड्रॉप हो सकता है, कोई भी रेस्ट हो सकता है, विराट कोहली इस लाइनअप में जरूर खेलेंगे। एंड ऑल क्रेडिट टू हिज हार्ड वर्क एंड हिज टेम्परामेंट। यस, completely. Looking at the way things have gone about, India has broken a big jinx, never able to win a Super 8 match. This is the first match that they've won. So suddenly things have started looking good for India. An ordinary looking side 2 days before everybody was criticizing India. Things have fallen in place. Now we are the stars, we are the moon. We were the stars when we defeated England. You know, I can't forget that. But our memories are so short-lived that we forgot about that 90-run victory over England, and we just started talking about the thrashing at the hands of not Australia but Watson and Warner. So you see, if you look at Australian team, the way Watson has performed, similarly Virat has performed for India. True. So you know, as Anjum was saying, that it's not the performance of India today and Virat Kohli especially. In fact, it was a very well turned out strategy in which the team captain and the team management looked very confident of the choice that India in a World Cup or in a multi-team contest, suddenly Pakistan seems to, the idea of playing cricket right against India. What's the problem? No, Is it a mental block? No, I think it's just a bad day. They've had too many bad days through these number of 35 odd years. From 92 they're having bad days. Yeah, they've been having, for almost these 20-25 years, they've been having those bad days. But it's just that the World Cup game gets the better of Pakistan and India comes out victorious. Otherwise, you know, I personally feel this Pakistan side has the mettle to go and win this World Cup championship as well. I'll be very surprised if they're knocked out. Having said that, I don't mean that India shouldn't make the cut. But if you see the top 4 teams, I think Pakistan is definitely one which should be there. Malay, how would you look at it? 92, Imran Khan tried it. 96, Amir Sohail tried it. 99, Wasim Akram tried it. 2003, I think Waqar Yunus. 2007, Shoaib Malik. Now Mohammad Hafiz. All the captains have tried it. They are not able to get that. All these records and all these statistics are all right for the books, record books. But you see, you can say it is a bit of a jinx, that's it, nothing more, nothing less. And that jinx, for example, टीम है, सभी टीमों का एक एक मैच अभी बचा है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, मंगलवार को यह पहला मुकाबला होगा। अगर इसमें पाकिस्तान हार जाता है तो भारत के पास अच्छा मौका होगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहुंचने का सेमीफाइनल में। तो देखना होगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है उस दिन इंडिया की टीम का। इंडियन टीम की हम आज की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं। बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम कहते हैं कि हम काफी वीक रहे, लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान को 128 रन पर हमने सीमित कर दिया, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? बॉलर्स को, कैप्टन को, प्लानिंग को? देखिए, एक तो भारत की गेंदबाजी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हुई। जिस तरह से 2003 का विश्व कप याद आ गया, जहीर शुरुआत फर्स्ट ओवर में 3 वाइड, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल ही भटक से गए हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह से अपने पार्ट टाइमर्स को यूज किया धोनी ने, आपने देखा जब युवराज गेंद डालने आए तो उनमें वो किलर इंस्टिंक्ट दिख रहा था। जब युवराज को सौरव गांगुली ने वापस टीम में शामिल किया था तो जो चेहरा मुझे अभी तक याद है, मैं उस मैच को कवर कर रहा था, युवराज का था, वही चेहरा आज देखने को मिल रहा था। उन्हें ये था कि आज इसे छोड़ना नहीं, बरकरार रखी। वो टूर्नामेंट में अभी भी जिंदा है। दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये जीत भारत के लिए जो मिला, हाँ, ज्यादा अच्छा रहा और वापस ओपन अप कर देता है ये चौथा ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, क्योंकि चारों टीम्स अभी इस समय अगर
स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो सकती है। सो आई थिंक बहुत अच्छा हुआ ये जीत होके भारत की, बिकॉज साउथ अफ्रीका के पास उम्मीद है, भारत के पास उम्मीद है, पाकिस्तान के पास भी उम्मीद है, और still Australia is in the hunt. So I think it's opened up this World Cup altogether, and probably it's a new twist in this World Cup in the last week of it. और जिस तरह से अब भारत को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलना है, दक्षिण अफ्रीका 2 मैच हार चुकी है, इस टूर्नामेंट में आने से पहले बहुत स्ट्रांग टीम मानी जा रही थी, लगातार अच्छे मैचेस जीतकर आ रही थी। कैसे देखते हैं उस मुकाबले को? मैं हैरान हूं कि साउथ अफ्रीका अभी तक अपने लय में नहीं आ पाई है। शुरू में 1-2 मैचेस अच्छा खेले, फिर एकदम डिप आया। बहुत बल्लेबाजी पे डिपेंड रहती है, क्योंकि इतने अच्छे गेंदबाज है, मॉर्ने मॉकल, डेल स्टेन है, लेकिन अगर उन गेंदबाजों को थोड़ा सा टारगेट नहीं मिलेगा डिफेंड करने के लिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका फिर भी एक डेंजरस टीम है। अपने दिन पे वो किसी भी ऑपोजिशन को डिमोलिश कर सकती है, और जैसा आपने कहा पिछले 1 साल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट गैरी कर्स्टन इज द कोच ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम, जो पहले फॉर्मर भारतीय टीम कोच रहे हैं। Malay, did Pakistan today get a bit over ambitious or a bit overconfident, considering that the win that they managed to get against South Africa? In games, as you know, the Pakistani captain saying, well, you might be a very good team, but you can't defeat us. I mean, this kind of thing goes on, but I think there was a pressure. But let's... आप दोनों से, क्योंकि समय बहुत ही कम है, भारत का अब अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ है। क्या चेंजेस देखते हैं आप इस लाइनअप में? क्या स्पिनर्स के साथ भारत को जाना चाहिए दक्षिण अफ्रीका? देखिए, पिच कौन सी होगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर ये पिच नहीं है तो फिर बालाजी कितना उस पर गोल खिला पाएंगे या पठान कितना गोल खिला पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से मंथन करना होगा कि कैसी पिच है, उस पर स्पिनर्स को ज्यादा खिलाएंगे। मेरे हिसाब से टीम में चेंज नहीं होगा, यही टीम खेलेगी साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यही टीम खेलती है, और इसी तरह से जिस तरह से आज भारत ने अहम जीत हासिल की है, इसी तरह से जीत कर एक बार फिर से यहां पर शानदार परफॉर्म करते हुए सेमीफाइनल में भारतीय टीम अपनी जगह पक्की करती है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ और इसी दुआ के साथ अब वक्त है आप सबसे इजाजत लेने का, और आप दोनों हमारे शो में आए, हमारे साथ डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए।